Hello, good evening, Assalamu alaikum and welcome to HMR Waterfront presents Game On Hai. मैं हूँ Rohan Nadeem and what we just witnessed in Barbados was the final, an epic final between India and South Africa, and in the end it was India lifting that World Cup after 17 years, a glory that they've been after for years and years, coming so close, and they've finally done it thanks to their captain Rohit Sharma and those 11 players who were out today, but also the entire squad, the support staff, the head coach. You could see in those visuals what it meant to them, and we can't wait to relive the entire match, the entire tournament as a whole, how it went for the Indian team. But congratulations to all the fans of India who were supporting them through and through in this World Cup. They needed that support going into this match because the nerves were there and you could sense the tension as every ball was bowled. We will relive the whole match as well with our post-match discussion. We have, as always, our wonderful panel, and we have Miss Erin Holland, who's smiling next to me, dressed in her beautiful white clothes. Erin, what a final, a match worthy of a final, and we will relive all of that in just a bit. I'll quickly introduce my wonderful panel of Game On Air who are here to dissect not just the match but also the whole tournament. We've got Shoaib Akhtar, Martin Guptill, Yunus Khan and Mohammad Hafiz. Gentlemen, welcome back to Game On Air. Pleasure to have your company with us once again as we take another look at the all-important final. But before we go towards that, let's take a little replay. Let's watch a little replay of our pre-match show, a little clip from a prediction maybe of something about reverse swing happening in the match. Please देखें. I think these two will do a great job for them when the ball will start reversing. Yeah. Because I'm dead sure on this track, because it's very dry, the surface is very dry, and also the square is also dry. So reverse will play a major part to win the World Cup for India. MVP? Obviously, if it's reversing, then Bumrah is the main man. Okay. Professor, one last time. Hit the nail on the head as always. That's exactly what happened, and it truly was that over by Bumrah and then followed by Arshdeep that really kind of sealed the fate of South Africa, because before that point they were 20 of 20. They were going to cruise it in. Well, first of all, would like to congratulate India. You know, the mindset behind, the vision behind, and they did it for all the fans, all the fans of this beautiful game of cricket. Obviously, as a fan of cricket, we are also feel very happy for them because they done it for the right reason, and I think I'm really happy to see them lifting the trophy. And you know, having said that, I think Shoaib also mentioned the same thing regarding that reverse swing, and that was the case. Obviously, if Bumrah is around, you can expect anything happen from him, because as Rohit also mentioned in his post-match interview, he said yes, he brings something on the table very specially, but how he made it, he has no idea. So this guy really is a master class of a bowler to me, who brings everything for the team, and really happy for them too. Right. Shoaib, your reactions on the match. You predicted India would lift the trophy. They have done that. But were you at all surprised by how the match went down in terms of the players and how easily South Africa could have walked away with the trophy? No, 100%. They actually done an amazing job by reaching the final, first of all. I think a very proud moment for South African cricket, and at the same time, I think the guys, all of them, African guys, I think they've done a wonderful job. I mean, like, they have given a run for the money. Literally, Indian was just panicking when the Klaasen was out there. And they literally won the game, and it took the game away from him. And had Klaasen stayed there for another 2 overs, the game would have been over. But Indians were panicking, for sure. And I thought at times that, you know, I hope there is no bad luck happens to South Africa. And I was kept on saying to my manager, I said, listen, all we need is just a bit of bad luck for South Africa. Otherwise, they're just running away with the game now. So what else could have stopped them right now, right here? What else could have stopped them? There comes Hardik Pandya with the slower one. Klaasen is gone. So India, as Rohit Sharma mentioned, that, you know, it's the process that he talks about. He's that a lot of thinking that he's went into the to the process that he had for the last 3-4 years has been very painful. His whole beard turned black to white.
in that through process. And I think it's just not only this World Cup alone, it is the World Cup that they lost last year that has taken a toll out of them. And the one before, that you know, they've been in the finals, they've been in the semi-final, they were down and about, they're investing tons of money. Literally, $1.5 billion went in from Indians into that tournament and playing on top of that such a great cricket, and by not winning it at the same time, that becomes a very, very embarrassing as Indians. But I think it's well deserved win for Rohit Sharma. I'll be very honest with you. If anybody deserves this trophy, I think it was only Rohit Sharma. And God has honored him with a such moment. I mean, a massive win, and I think the biggest takeaway, Roha, was just seeing obviously elation, but relief on the faces of the Yes. Indian A team. There were lot so of many that. tears. It was like a weight had just been lifted off their shoulders, and the emotion just poured out of every single player, Marty. I don't think there was a dry eye on the field. This meant so much to them, and credit to them for pulling themselves out of a really sticky situation, because honestly, hands up, I think that South Africa very nearly ran away with it when it was 20 off 20 and they were cruising it in with only 4 wickets down. What was your impression on, I guess, the turning point for India? How did they dug themselves out of that hole? I guess you could say at that point it was South Africa's game to lose, and that's exactly what happened. They were cruising. They should have won. They should have taken it to the last 2 overs with only maximum 5 wickets down. Those 2 quick wickets in there really just stunted the rest of the chase really. And then obviously Bumrah coming back in and taking a couple there and not going for many runs in those last couple of overs that he bowled. It was he bowled extremely well. Credit to India, they stuck at it, they hung in there, and obviously the last over, Surya Kumar Yadav with a clutch catch on the boundary that could have turned, could have changed if he didn't get a hand on it, or if it had gone for 6 or anything like that. So, you think about those things. If that had gone for 6, 10 or 5, Miller going strong, what happens from there? It's a completely different story. But I mean, that's the absolute biggest clutch catch of his career, right? Like, imagine what was going through his head as that ball was coming towards the boundary. Pressure makes diamonds, and Sky has been so good with the bat that who'd have thought his fielding would have been one of the turning points today. It was a clutch catch, as I said, and not many people would have held their nerve and made the play. I mean, he only had inches to work with on the boundary and tiptoed round it to be able to stay inside the field of play, throw the ball up, step out, come back in, and he did it to absolute perfection. So a hell of a catch. Right, Yunus Khan, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता what it feels like to be in that position, जिसमें हम अभी visuals पे देख रहे थे रोहित शर्मा just tears in his eyes and looking around and couldn't quite believe what was happening. Process नहीं हो पा रहा था उस time पे, but his family was there, all the media were there, and everybody was just surrounding him. He was the most important man in that stadium at that time. कैसा feel कर रहे होंगे रोहित शर्मा? Because it means so much to them as a इस वक्त तो nation. स्काई हाई होंगे वो बिल्कुल. और जिस तरह उन्होंने खुद ये मेंशन किया कि ये अभी ये सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से इस तरह आ रहे हैं. और ये देखिए, रोहित शर्मा की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बैक किया, विराट को बैक किया, सूर्य कुमार को बैक किया, जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया. और उन्होंने जब भी वो स्टेटमेंट उनके मतलब बात होती है तो आप वो ये बार बार कह रहे हैं, आप उनके लिए बात कर रहे हैं, कमाल करते हो. इस तरह के स्टेटमेंट जब आप अपने प्लेयर के लिए देते हो, उनको बैक करते हो, तो फिर एग्जैक्टली इसी तरह होता है. और बारहा जब भी उनसे विराट कोहली की बात हुई तो उन्होंने कहा आप विराट कोहली के मुताबिक उनके मुताबिक बात कर रहे हैं, अभी देखें क्या होता है. और सडनली उन्होंने किया. तो देखिए, ये सिर्फ ये एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये बेसिकली ये 4-5 जो टूर्नामेंट्स ये खेलते हुए आ रहे हैं, ये वहाँ की बात है. और वो डिज़र्व करते थे, वो डिज़र्व इसलिए करते थे कि उन्होंने एक टीम ऐसी बनाई जिसमें वो सिर्फ विराट की तरफ नहीं देख रहे थे, रोहित शर्मा की तरफ नहीं देख रहे थे, जस्ट बुमराह की तरफ नहीं देख रहे थे. अगर आप इनकी टीम में देखें तो वो एक कैच सूर्य कुमार यादव का, फिर उसके बाद वो एक विकेट जो कि 17th ओवर की फर्स्ट बॉल पे क्लासन का आउट होना. तो ये जब मेच्योर टीम होती है आपके पास और उसमें बहुत सारे मैच विनर्स होते हैं तो वो अपना पार्ट अदा करते हैं. तो मेरे ख्याल से और क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा और उनकी मैनेजमेंट को. राहुल द्रविड़ को बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो एक ऐसा बंच ऑफ प्लेयर उन्होंने इकट्ठे किए जिसमें जब प्रेशर पड़ते हैं तो सीनियर प्लेयर परफॉर्म करते हैं, और जब उनको एग्जीक्यूशन होती है, जब उनको बहुत कुछ करना होता है तो उनके जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो आते हैं और वंडर्स करते हैं. तो मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने एक ऐसी टीम बिल्ड की है कि अगर वो इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे तो बहुत सारे और जो है वो
ट्रॉफी जो है ना उनके लिए मुंतज़िर है. बिल्कुल एक क्विक नजर भी डालते हैं मैच समरी पे. व्हाट वेंट डाउन टुडे इन बारबेडोस. ऑफ कोर्स इंडिया वन द टॉस and chose to bat first. No surprises there. It was a bright sunny day by the time the match started off. 76 for Virat Kohli, his last T20I for India, and what a way to bid farewell. 59 balls पे उन्होंने 76 किया. Winning player of the match Akshar Patel with 47 and Shivam Dube with 27. A careful 27, he could have built onto it, but thanks to South Africa's bowlers, Maharaj picking up a couple in his quota of 3 overs. Nokia with couple as well. Rabada and Jansen picking up 1 wicket each in their 4 overs. And in reply, of course, South Africa starting off the chase in a bit of a shaky manner, losing Hendricks early on. But Quinton de Kock with 39 off 31. And of course, playing a superb knock was Henrik Larsson with 52 off 27, including 5 sixes for him. Tristan Stubbs did well support him on the other side. 31 for him, 21 for Killer Miller, who could have just stayed there and taken the game home, but it was Indian bowlers at the death, especially Hardik Pandya with 3 wickets off his 3 overs. Bumrah picking up 2 in his 4. Arshdeep Singh with 2 as well. And coming very close to that World Cup was South Africa, but in the end it was India winning the match by 7 runs and lifting the trophy. Let's talk about the king for a little bit. I think we have to. Because yeah. it was his last World Cup for India in the T20 format, last T20I for India. He did announce, and Erin, what a way to go for him. I mean, the king only knows how to sign off in style, doesn't he? It's an end of an era, the king being at the helm of Team India in the T20 format. It's crazy to think it's the last time that we've seen him, but what a way to sign off. We'd said a Kohli that's in danger of runs is a Kohli that's very, very, very dangerous. And that's exactly what he put up for us today, Shoaib. Leading from the front, he needed a big knock when he lost Rohit Sharma chiefly down the other end. But, I mean, what a career. What a way to finish. 76 or 59, player of the match in a T20 World Cup final, and you win the trophy. It was perfect fairy tale. 2 World Cups? 2011 and Yeah. now? Yeah, sure. There is no time to start playing cricket. Whenever you pick up the bat, whenever you take the ball, you become a cricketer. But you should know as a cricketer when to sign it off. I mean, that makes you you. And it takes a lot of courage for the people to, you know, to just to say, listen, I'm hanging up my boots. I mean, this guy knows, he planned everything for himself. It's not just a one-day process. He must have discussed with his family, wife and everybody, and the management, obviously. But what a great way of signing it off. What a great way of leaving this game. Scoring runs, winning the World Cup, giving a moment to Rahul Dravid by giving him a trophy and lifted up, and is making sure that everybody becomes a part of the whole team. But with the way he played today, I think that kind of rings that he used to play, and the way he played today, that was required from him. And that was his game, by the way, anyways. Not as an opener, but as somebody who can just stays there and anchors there till the end and finish it off, and the people play around him and to get him a good total. I think India could have gone on to achieve 200 runs, but Hardik came very late, but he's done a fabulous job. And then he made sure that my strike rates gets up to the level where I expect. I mean, integral knock in the end for India. It was exactly what they needed, an anchor right the way through the innings, Marty. As he signs off on what's been an incredibly illustrious career, one of the greatest to have ever played the game with the bat, absolutely. The emotions that go through your mind when you retire from international cricket, and what must he have been thinking? I think it's just his time in that format. You know, he's played a lot of cricket in his career. I mean, he's played 100 matches in each format. You know, a very select club to do that. I think there's only maybe 5 to 6 people who have actually done that. So, you know, it's a pretty illustrious club, and you know, for him to bow out in his own terms is you know, fantastic, and you know, he's been able to be afforded that opportunity to do that. And then to have obviously sealed it with a World Cup win and 70 odd and a man of the match. You know, it couldn't have written a better script for himself, really. The perfect end to the fairy tale of King Kohli. He's been exceptional for such a long time, and a deserved ending for someone who's just been what a proponent of the sport and a wonderful figure he's been. It's kind of hard to put it into words, to be honest, but congratulations. What a career. What a way to end it. To sign off for Virat Kohli. And of course, we will be taking a deeper look into
each and every contribution from this match, but I think because we are a bit short on time, we have to head towards a break. Before we do that, I'd just like to say a big thank you to my wonderful co-host Erin Holland, who's been just amazing with me, sitting next to me throughout this World Cup, helping me sail through this journey. And I know Martin Guptill, you also have to leave in a bit because you have a flight to catch tonight, pretty early actually in the morning, 3 a.m. So you will be also not joining us after the break. But Mari, thank you so much for being a part of Game On Air, for being in our beautiful country. I hope we were able to take care of you. Absolutely. And you had a good time. And any last remarks before you sign off? Just thank you for the opportunity for having me. I've really enjoyed working with you guys, with everyone here, and I hope to be back in the future at some point. You've done such an awesome job. It's your first experience as being an expert analyst on the show. You've been absolutely incredible. The insight that you have after contesting 10 World Cups yourself has just been, so insightful, and I think you've been absolutely wonderful, and I think this is the start of a new career for you. The super over prediction that he called again in that match between Pakistan and USA. Genius stuff. Thank you so much, Marty, for adding your value to Game On Air. And Erin Holland, you have been brilliant. You have just so beautifully gelled into our culture and so beautifully represented it on screen with your insightful analysis, but also just adding your own flair to Game On Air. You've been a joy to work with, and congratulations on another successful project. I hope you had a good time in Pakistan these last few weeks. Oh, bahut shukriya. It's a new experience being a part of the PTV family, but I think I'll be sticking around for a little bit longer as well in other aspects. So I just wanted to say thank you so much to you all for being so welcoming and kind. Pakistan is honestly the most hospitable and welcoming and loving country. So I feel every single message that I get, every well wish, I hear it, I read it. Thank you so much to the whole PTV family for looking after me and Marty so incredibly well. And we're literally off to catch a flight. I'm off to another league and Marty's off to home just for a few months. So, thank you for having us so much again, and we look forward to seeing you all soon. And I hope you enjoyed the food as well. She's been having a lot of Pakistani cuisine, some street food. She had gol gappe, which we all enjoyed watching her struggle with all of that. But it was a joy to have Erin Holland with us. Thank you once again, and thank you, Martin Guptill. We're over for a short break here on HMR Waterfront Presents Game On Air. But when we come back, we'll continue our discussion of the match of the all-important final of the World Cup. Don't go anywhere. We'll be right back. Welcome back to HMR Waterfront Presents Game On Air. We're talking about the big finale between India and South Africa, and in the end, after a close game, a nail-biter, we saw India lifting the World Cup after 17 years. उसी के ऊपर मज़ीद अब बात करते हैं. हमारे साथ of course हमारा panel मौजूद है who will walk us through what happened with that South African batting. हमने बहुत build-up में बात की हफीज़ about India's bowling, उनकी combination, कहाँ पे कुलदीप आएंगे, कहाँ पे अक्षर को वो यूज़ करेंगे, और बुमराह being बुमराह, once again उन्होंने दिखाया कि वो एक proper balanced combination लेके इस वर्ल्ड कप में आया है. और पहले दिन से उन्होंने उन पिचेस की तैयारी की हुई थी जो कि टीम्स को शायद आइडिया नहीं था. गयाना में उनका सेमीफाइनल हुआ, फिर बारबाडोस में. What will you say on the Indian bowling that has been winning them game after game in this World Cup? देखिए, पूरे वर्ल्ड कप में तो वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन जो फाइनल में एग्जीक्यूशन है, जैसे फाइनल को जीतने के लिए जो प्रेशर आपके ऊपर आता है, उसमें आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स इतने हाईएस्ट लेवल पे आप लेके जाएं, तो ये स्पेशल होता है किसी भी प्लेयर की तरफ से. आप इस मैच को अगर आप देखें कि जो उनके मेन बॉलर थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कुलदीप यादव, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ऑफ कलर रहा, बिल्कुल उनका एक ऑफ डे था, अच्छी जगह पे बॉल नहीं था गिर रहा. इट हैपन्स टू एनीवन. लेकिन जिस तरह रिप्लाई किया, रिवर्स स्विंग को इस्तेमाल किया तीनों फास्ट बॉलर्स ने, बुमराह ने 2 आउट किए, अर्शदीप ने 2 आउट किए, 3 आउट इसने हार्दिक पांड्या ने किए. ये फॉलो विकेट्स भी अगर हम देख लें एक बार, ये ऑब्वियसली लाइक वी ऑल नो हाउ गुड ही इज. लाइक आप देखें एंगल से बॉल अंदर आया, लेकिन हल्का सा अंदर आते हुए हल्का सा जो स्विंग हुआ अवे फ्रॉम हिम, और ये रिजा हेंड्रिक्स जो है पूरा टूर्नामेंट क्वाइट खेले. अर्शदीप टेकिंग अनदर विकेट विद द न्यू बॉल, क्योंकि दोनों ने नए बॉल से भी अच्छा परफॉर्म किया, और रिवर्स जब एंड हुआ तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म. हाउ इम्प्रेस्ड हैव यू बीन बाय अर्शदीप से? बहुत ज़्यादा. मैं समझता हूँ कि एक यंगस्टर होके
डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस लेके आना, नए बॉल के साथ इम्पैक्ट डालना, पुराने बॉल के साथ इम्पैक्ट डालना। और देखें तीसरा जो उनका मेन बंदा था वो हार्दिक पांड्या, जो हर एक क्रूशल गेम, क्रूशल स्टेज के ऊपर मैच जितवा था। यहाँ पे अगर ये विकेट ना ली जाए तो आप सोचें कि ये वन साइडेड अफेयर था, लेकिन वो जो बिलीफ है इनके अंदर बॉलिंग करने का, बुमराह का ये वाला ओवर सेटअप कर गया पूरे मैच को जीतने के And लिए। this was the ये turning कैच मेरा point. ख्याल ये बॉलर का कमाल नहीं है, ये सूर्या कुमार यादव की Wow. क्वालिटी फील्डिंग है। मुझे लगता है कि ये सदियों याद रहेगा, इस तरह का कैच जो आपको वर्ल्ड कप जितवा दे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल वो जिसकी हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल अंडर प्रेशर करने की, तो तीनों फास्ट बॉलर्स ने करके दिखाया, लेकिन हाउ गुड दे वर इन द फील्ड, कितनी अच्छी उन्होंने कैचिंग करके वो क्रूशल मोमेंट जीते जो नॉर्मली साउथ अफ्रीका जीत रही थी। तो मुझे लगता है मोस्ट डिजर्विंग टीम थी इंडिया इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। पिछले 4 साल 3 साल का प्रोसेस की बात कर रहे हैं रोहित, तमाम लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, खुद क्रेडिट नहीं ले रहे। दिस इज़ हाउ द लीडर बेसिकली रिएक्ट ऑन अ सिचुएशन जहाँ पे वो चाहता तो अपने लिए सब कुछ बोल सकता था, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एवरीवन इन्वॉल्व इन दिस जर्नी। I want to talk about what he said. शोएब इन द पोस्ट मैच इतनी खूबसूरत बात उस मौके पे, उस स्टेज पे उन्होंने की कि लोगों को नज़र आता है कि हमने ट्रॉफी आज जीती है, लेकिन ये आज नहीं है। लोगों को नज़र नहीं आता जो बिहाइंड द सीन्स जितनी हमने मेहनत की है ओवर द लास्ट 3-4 years टू गेट अस टू दिस पॉइंट। वो जो बिहाइंड द सीन्स मेहनत है ना शोएब, वो प्लेयर्स की लोगों को नज़र नहीं आती। रातों रात ऐसे ही नहीं वर्ल्ड कप जीत लेते। नहीं, पहले यूनुस जवाब दे दें। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम ये बात करें ना कि इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं जो कि टीम बनते हैं। अच्छा, टीम में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कैप्टन होते हैं, उसके बाद उनके वाइस कैप्टन होते हैं, कुछ सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं, और फिर मैनेजमेंट में अगर आप लकी रहें, हमारे पास भी ऐसा होता रहे कि हमारे पास भी गाय बगाए ऐसे लोग आते हैं। बॉब वुलन की हम बात करेंगे कि वो जब आए तो हम सब इकट्ठे हुए, उन्होंने हमें इकट्ठा किया, उन्होंने हमें एक्सप्रेस अपने आप को, अपने सेल्फ को करने के लिए दिया, और फिर हम इकट्ठे हो गए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह रोहित शर्मा ने ये बात की कि नज़र तो ये वर्ल्ड कप आ रहा है, ये ट्रॉफी नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे 3 से 4 साल है। तो उन्होंने जिस तरह सबको मैनेज किया, और अगर इससे पहले हम देखें तो विराट कोहली जब कैप्टन होते थे तो वो बैक करते थे रोहित शर्मा को। अब जब रोहित शर्मा कैप्टन बने तो वो विराट कोहली को बैक कर रहे हैं। और फिर जिस तरह विराट कोहली ने वो इनिंग खेली है हमारे सामने, और पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑफ कलर नज़र आए, और एक इनिंग, और जिस तरह उनका सेंड ऑफ आज हुआ है, तो मेरे ख्याल से अमेजिंग है। तो ये देखिए, ये टीमें बनती हैं, ये सिर्फ एक कैप्टन से नहीं बनती, ये बल्कि 4-5 आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं। कैप्टन फ्रंट से तो लीड करते हैं, और उसके बाद कुछ मैनेजमेंट में अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग स्टाफ में कुछ ऐसे लोग आ गए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब आपने देखा हो कि जो खुशी थी इनके डगआउट में, और उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ था They were all emotional. उसमें एक पॉइंट है, उसमें सारे इंडियंस बैठे हुए थे, उसमें कोई बाहर का नहीं है, सबसे टॉप Fair की टीम point. खिलाते हैं। ये एक पॉइंट है। अपने लोगों को इज्जत आपको मैं, और जब आ रहे हैं हेड जी। कोच, सुनने में जो आ रहा है गौतम गंभीर, ही इज जी, आल्सो तो वन ऑफ आपके अपने लोग हों, कैपेबल लोग हों, जो कि आपके मुल्क के हों, और जो कि अगर पाकिस्तान की टीम है तो वो अंदर से भी पाकिस्तानी हो, वो अंदर से भी इंडियन हो, अंदर से भी उस टीम के हों। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है टीमों में। राइट, व्हाइल वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट शर्मा, रोहित शर्मा, शोएब एज अ कैप्टन 2022 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचे इंडियन टीम। 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रनर्स अप रही इंडिया, फिर 2023 ODI वर्ल्ड कप के रनर्स अप रहे, एंड फाइनली 2024 में दे हैव लिफ्टेड ट्रॉफी। बार बार उस स्टेज पे आना, हार जाना, एंड देन फाइनली डूइंग इट, व्हाट डज इट मीन for Team India, and of course the 2 great men who are bidding farewell, 3 great men actually. Rohit Sharma अभी तक official announcement नहीं आया, but we know it's his last World Cup as captain. Kohli and of course Rahul Dravid. देखो यार, हम तीनों पाकिस्तान से खेले हुए हैं, हम तीनों को एग्जैक्टली पता है बीच की बात क्या है। हफीज़ भी जानता है, यूनुस भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। वर्ल्ड कप पता है कौन उठाता है? कौन सा कप्तान उठाता है? जो नीयत का साफ होता है, जिसके पीछे प्रोसेस होता है कि यार मेरा मुल्क जीत जाए, उसके लिए चाहे मुझे गलत तो नहीं, जो सही है वो मुझे करके छोड़ना है, और मुझे उस लड़के को बैक करना है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, फिर उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही है ना, किसी भी आदमी को जो वर्ल्ड कप वाली इज्जत होती है वो एमी चलते हुए नहीं मिल जाती। ये 3 साल वेल डिजर्व करता था रोहित शर्मा। रीजन बीइंग इज कि उसका एक टारगेट था, एक मकसद था कि टीम इंडिया या हिंदुस्तान को एक दफ़ा वो वर्ल्ड कप जिताना चाहता है। अब उस प्रोसेस के लिए उसने विराट कोहली का साथ दिया।
आप भी जानते हो वो नेचुरल ओपनर नहीं है, उसने खिलाया, उससे नहीं खेली जा रही, वो गेम उसकी है ही नहीं, उसको रन बॉल खेलना है, उसको बीच में एक दो चौके मारने हैं, बाद में आगे स्ट्राइक रेट ठीक करने के लिए इधर उधर चलाया तो उसका स्ट्राइक रेट ठीक हो, ये उसकी नेचुरल गेम है, खिलाया। लेकिन मुझे ये बताएं कि हार्दिक पांड्या जिसको वो उसने रिप्लेस किया एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस के लिए, क्या उसने ग्रज रखी उसके लिए? हार्दिक पांड्या को गालियां पड़ी ग्राउंड के ऊपर बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा को रिप्लेस किया मुंबई इंडियंस में। आज रोहित शर्मा ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसको आके यहाँ पे इतनी बड़ी केस करके गया है हार्दिक पांड्या को, क्या किए गया है, थैंक यू वेरी मच कि तूने यू हैव कंप्लीटेड माय ड्रीम थ्रू योर बॉलिंग्स। ये होता है ऐसा ही थैंक्स गिविंग, दिस व्हाट यू कॉल थैंक्स गिविंग। ये थैंक्स गिविंग के लिए नेतन कप्तान का होना अच्छा बहुत जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस गाय सिटिंग नेक्स्ट टू मी, अल्लाह ने इसको 2009 की क्यों इज्जत दी? बिकॉज इसलिए बनता है। इमरान खान को 92 की इज्जत क्यों मिली? बनता था। बाद में क्यों नहीं मिली? बनता नहीं था। सो ऑल वी कुड सी इज कि मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि रोहित शर्मा वेल डिजर्व कैप्टन है इसकी ट्रॉफी के लिए। ये कह रहा था ना मैं आपको बार-बार, बिल्कुल कह रहे थे। मैंने आपसे कह रहा था ना इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, बिल्कुल। मैं आपको कह रहा था अफगानिस्तान सेमीफाइनल करेगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यार हम एक बिखरा स्कैटर्ड शराजा है। इस सारे शराजे को बड़ा अच्छा सम अप किया हफीज़ ने, बड़े अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने आपको कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, एंड देन कम्स फ्रॉम द गाय हु आर रियली रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्ट टिल द डे नाउ, बिकॉज इसका मकसद सिर्फ ऑनरेबली ये होता है कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। मेरा सिर्फ ये मसला था कि मैं निशानदेही कर दूँ, निशानदेही भी 10-20 साल से कर रहे हैं। डिटीरिएशन पाकिस्तान क्रिकेट आज की नहीं है। इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना 4 साल पहले का प्रोसेस है, बिल्कुल। ट्रॉफी का आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की डिटीरिएशन 20 साल का प्रोसेस है, जिसका एंड रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या के बारे में बात की कि कैसे रोहित शर्मा ने उनको बैक किया, आज उन्होंने भी जैसे ही मैच वो जीते हैं और वो उस इमोशनल मोमेंट में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया आईसीसी को, उसमें उन्होंने भी बड़ी मज़े की बात की है। और वो भी ये सोचने की बात है हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी, हर कॉन्टेक्स्ट में, कि उन पे जब बुरा वक्त आया, ही सेड कि देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज हियरिंग अबाउट फ्रॉम द लास्ट 6-7 months, बट आई स्टेड क्वाइट एंड आई न्यू दैट आई विल रिप्लाई ओनली डूइंग व्हाट आई डू बेस्ट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कैप्टन आपको बैक कर रहा है, एज अ प्लेयर जब आप उस रफ पैच से गुजर रहे हैं, उस डार्क पीरियड से, खामोश रहना हफीज़, अपने आप को डिग्निफाई जो है करके उस डिग्निफाइड तरीके से उसको कैरी करना और फिर ऐसे जवाब देना, हाउ स्पेक्टेकुलर। हम हमेशा ये मानते हैं और हमने सुना भी है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल। अगर आप इस टीम की तरफ जाएं तो देखें, इंडिया की टीम की ये जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम सब ने ये क्रिकेट खेली हुई और हमें पता है कि जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं कामयाबी मिलती ही मिलती है, तुक्का नहीं लगता, वो तुक्का नहीं होता। तो देखें उनके 1-2 मरतबा ऐसे आए कि दे वर वेरी क्लोज टू विन द वर्ल्ड कप, दे कुडंट डू दैट। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस कैसा था, जैसे कप्तान खुद बात कर रहे, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सके, विच वाज आल्सो अ लर्निंग कर्व फॉर अस। नाउ वी अंडरस्टैंड कि एवरीवन हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोसेस को, अगर आप हार्दिक की बात करें, हमेशा जो अच्छा प्लेयर है या जो बड़ी स्टेज को के अंदर परफॉर्म करना चाहता है, वो छोटे मोमेंट्स कैच नहीं करता, वो बड़ी जगह का इंतज़ार करता है। अगर आप बात कर लें कोहली की, तो उसने क्वाइट रहा, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने उसको काफ़ी तरीके से कहा कि शायद ये ही इज़ डन एंड डस्टेड। देखें प्री मैच्योर है, लेकिन गौतम गंभीर की जो स्टेटमेंट थी बिफोर एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट, आई थिंक दैट वाज वेरी प्री मैच्योर स्टेटमेंट फ्रॉम समवन हु माइट बी द नेक्स्ट कोच फॉर इंडिया। वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, आई थिंक दैट वाजंट द राइट टाइम। ये ख़त्म होता फिर बात करते, लेकिन ये क्वाइट मैसेज है कि जो बड़ा प्लेयर है वो उसको कैसे आपने डील करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रोहित शर्मा या विराट कोहली ये यंग नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो किस लेगेसी को उन्होंने छोड़ा है, दैट विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। सो आई थिंक कोहली का आज रिटायरमेंट देना, आई थिंक वन ऑफ द, आई वुड से काइंड ऑफ अ शट अप कॉल टू एवरीवन कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और उसने अपने ग्रेट जोन में रहते हुए एक वर्ल्ड स्टेज को जीत के अपने मुल्क को दे के, एक विनिंग मोमेंट दे के उसने अपना एग्जिट लिया इस फॉर्मेट में। अभी वो वनडे और टेस्ट में रिटायर नहीं हुए,
लेकिन इस फॉर्मेट में आई थिंक ही गिवन अ बेस्ट स्टेटमेंट टू एवरीवन। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा की तरह वो बात है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल, और ये अगर ये बात वाकई सच है तो वो हमें नज़र आ रही है रोहित को ये ट्रॉफी लिफ्ट करके, विराट कोहली का फाइनल के अंदर परफॉर्म करके, और राहुल द्रविड़ का आखिरी मैच जो एज ए कोच वो कर रहे थे वहाँ पे इस तरह का एग्जिट, आई थिंक दे डिजर्व दैट। आई थिंक ऑफ कोर्स ग्लोरी बहुत बड़ी है इंडिया की टीम के लिए, बट अगर हम दूसरे एंड पे देखें टीम साउथ अफ्रीका को, वो जो हमने विजुअल्स देखे, वेरी हार्ट ब्रेकिंग यूनिस टू सी दैट टीम, दैट फीलिंग वेरी वेल ऑल्सो, कि जब आप इतना करीब आए, क्योंकि आज भी उन्होंने मैच को वन साइडेड नहीं होने दिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपकी नज़र में टीम साउथ अफ्रीका के लिए क्या आप उनकी जर्नी पे क्या कहेंगे रिफ्लेक्ट करते हुए, एंड उसके बाद हम एक पैकेज भी देखेंगे उनके आज। अमेजिंग जर्नी थी इस वर्ल्ड कप में, जिस तरह उनका स्टार्ट हुआ और क्लोज मैचेस हुए, और हमने ये देखा कि जो प्रीवियसली आते थे किसी भी वर्ल्ड कप में आते थे स्मूथली, वो सेलिंग करते थे, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और हार जाते थे। इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, और मैच में सेलिंग तो बिल्कुल नहीं हुई, अप एंड डाउन हुए, लेकिन वो जो एक पास्ट होता है ना, आप कहीं से आप वो आपसे हाथ से निकल जाते हैं। एग्जैक्टली आज भी वही हुआ, 24 बॉलों पे कोई 26 रन रहते थे, आपके 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं, और एक ऐसा बैटर खेल रहे हैं जो कि अभी लगता था कि अगले 10-12 बॉलों में मैच ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनसे वो पार नहीं कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी लर्निंग है उनके लिए। उन्होंने एक अच्छा कैप्टन चूज़ कर लिया है, टीम उन्होंने कंबाइन कर ली है। जो हमने वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम के लिए कहा था कि अब यहाँ से क्या हो सकता है, आगे कैसे मूव कर सकते हैं, अब वो ये ना करें कि दोबारा जाएँ और लीग्स खेलें और फिर वर्ल्ड कप के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएँ। साउथ अफ्रीकन्स के लिए भी यही है। मैंने भी उनका ये देखा रिसेंट पास में कि वो खेलने चले जाते हैं, अब वो मेक श्योर करें कि उनकी एक टीम सेट हो रही है और अब ये कंटिन्यूसली करें। उनका कैप्टन, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ और जो ख़ास तौर पे प्लेयर्स हैं, इनमें वो स्पार्क है कि अब उन्होंने वो जो एक पार करना होता था ना, वो उन्होंने कर लिया। वो समहाउ वो नहीं जीत सके, ये डिज़र्व करते थे कि वो जीतते जिस मौके पे आगे थे, लेकिन ये कि अब वो इसी तरह उनके लिए यही है कि वो इकट्ठे रहें, उनके सपोर्टिंग स्टाफ ये रहे, उनका कैप्टन कंटिन्यू, ये ना हो कि फिर अभी जाएं और फिर कोई नया कैप्टन नज़र आ रहा हो। तो मेरे ख्याल से ये उनको यही करना चाहिए अगर उनको वंडर्स करना है इस क्रिकेट में। और इस वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है कि उनके डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में। टॉप ऑर्डर में क्विंटन डी कॉक यूनिस, ही वाज द वन जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे थे, लेकिन आज हेनरिक क्लासन ने भी कहा अमेजिंग बैटिंग। आई एम स्टिल हियर। एक झलक देखते हैं उनका आज का जो नॉक था, 52 ऑफ 27 फ्रॉम हिम। देखिए उनके जो शॉट्स हैं ना, वो उन्होंने इसको हम ठीक है पावर हिटिंग तो कहते हैं, लेकिन ये स्किलफुल पावर हिटिंग हम कहेंगे। एक्स्ट्रा कवर पे आपको जो इस तरह छक्के मारना और फिर खड़े खड़े आप लॉन्ग ऑफ और खास तौर पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के लगाते हैं स्पिनर्स को, वो बड़ा अमेजिंग। ये कुछ शॉट्स वही खेल सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी पावर हिटिंग हमने कम देखी है कि वो थ्रू द लाइन खड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और फिर वो जैसे ही थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉल होता है वो पूरा बाउंड्री के सामने जाते हैं। तो ये 2 या 3 बाउंड्रीज की और बात थी, सिर्फ ये 4-5 बॉलें थी। बिल्कुल, अगर वो 17 ओवर के पहले बॉल पे आउट यहाँ नहीं होते तो रन बॉल था उस वक्त, और दोनों सेट खेल रहे थे, और इनके आउट होने के बाद क्या हुआ कि सारा प्रेशर जो है वो मिलर पे चला गया, और वो फिर वो स्ट्राइक पे भी नहीं रहे। इस वक्त जब ये आउट हुए हैं 151 था और ये 17 ओवर का पहला बॉल हुआ रन बॉल था। They still had 6 wickets in hand. But Shoaib, what will you say on South Africa's journey in this World Cup, coming so close once again? A tough journey. Final हारना easy नहीं होता, but you know what they say is the smooth sea never makes a good sailors, right? तो been a rough final for them. I hope जिस तरह यूनुस ने कहा, उनके कप्तान कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, मैनेजमेंट कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। जेलन बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइनली दे हैव फाउंड अ गुड कैप्टन, बट वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अफ्रीका, और मेरी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन देखिए, मैच तो आपको फीफा वर्ल्ड कप याद होगा, पीटीवी नहीं दिखाया था, ये वर्ल्ड कप भी आप ही दिखा रहे हैं। 3 गोल मेसी भी कर गया, मेसी भी गोल कर गया, 3 एम्बापे भी कर गया, और यहाँ पे क्लासन भी कर गया, और रन बॉल भी नहीं है, लेकिन बच खुदा बीच में आ गया। अब उन्होंने कहा जी हमने इज्जत रोहित शर्मा को देनी है, और फैसला हो गया ऊपर से। हालांकि मैच में तो कुछ नहीं बचा हुआ था, फैसला तो हो चुका था, लेकिन फैसला ऊपर होना बाकी था कि हमने देना किसको वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ा दी उधर। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये 2 ओवर पहले मैच खत्म हो सकता है, लेकिन 2 ओवर पहले मैच हमने खत्म नहीं होने देना। बट वॉट ही हैज़ बीन थ्रू, कि अगर हार्दिक पांड्या की जर्नी आप देखेंगे पर लास्ट 6-7 मंथ्स, पर्सनल लाइफ से लेके उसकी क्रिकेट लाइफ तक,
आईपीएल की जर्नी देख लें, यहाँ तक तो बड़ा बहुत ट्रोल बहुत बहुत टफ टाइम था आईपीएल में कि फर्स्ट टाइम ये कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ये हुआ कि आपके टॉप के प्लेयर के खिलाफ जो है नाराबाजी हो रही है। ये हमने तो कभी नहीं देखा मेरे ख्याल से, कभी बहुत कम हुआ Unreal होगा। था, and you could tell from his body language in those first couple of games जो हमने भी notice किया था, but then he found a way to bounce back, and I think आज जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है, everybody will remember those visuals, and all of the people who had nasty things to say about him, I think he has turned everybody into his fans, and ये बहुत important चीज़ होती यही है। तो मोमेंट्स आपको बंदे का पुत्र बनाते हैं ना। बुजदिल आदमी भाग जाता है, Yeah. बड़ा आदमी ये मौका देख के बड़ा हो जाता है। No doubt. कोहली पूरी टीम आउट होगी और उसे मौका वो ये मौके ढूंढ रहा होता है कोहली कि टीम जब सारी फारिग हो जाए, अब सिचुएशन आ गई मेरे पे, हम क्या करते हैं, हम बचते हैं इन सिचुएशन से। क्यों बचते हैं और देखिए हम? मैं ये एक तो चीज़ इतनी ऐड बड़ी करूँ, जो Understand? अच्छी टीम होती है, जो यूनाइटेड होके खेलती है, वो क्रेडिट नहीं लेती, वो दूसरों Credit को देती प्रेस है। करती है। हाँ, किसी एक ने भी, इवन कप्तान ने अपनी मैं नहीं नहीं की, किया। उसने सबको प्रेस किया, उसने अपने इंडिविजुअल्स को बड़ा किया। Absolutely. इंडिविजुअल्स दूसरे टीममेट्स को बड़ा कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ टीम। अनफॉर्चुनेटली वो टीमें जो सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं करना जानते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो इस टीम की जो कामयाबी की, ठीक है, बहुत सी चीज़ों पे काम हुआ होगा, टेक्निक पे, टैक्टिक्स पे, फिटनेस पे, लेकिन जो मेंटल पार्ट है, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने हिट किया है, सबसे ज़्यादा उसकी लुक आफ्टर किया है कि कोई भी शख्स कामयाबी के बाद क्रेडिट लेने के जोन में नहीं है। सब एक दूसरे को बड़ा कर रहे हैं, सब एक दूसरे की एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। आई थिंक यही कुछ वो खसूसियात हैं जो शुएब भाई बात कर रहे हैं कि वो कुछ लोगों को ये चुना जाता है। जब आपकी एज ए टीम ये खसूसियत डेवलप हो जाए, एक या दो बंदों के साथ भी नहीं जीता जाएगा कि कोई एक बंदा कहे कि जी मैं बिल्कुल मुखलिस हूँ तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। everyone, each and everyone involved have to think the same way। और जो इन्होंने बात की है, मैं उस पर सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ यूनुस भाई ने, कि देखें पाकिस्तान और इंडिया कोई 5 या 10 साल पुरानी टीम नहीं है जिसको बाहर के कोचों की ज़रूरत पड़े। मैं ये नहीं कहता उस्ताद है, कहीं का भी आएगा उसने आपको बेहतरीन हल बताने हैं, सॉल्यूशंस देने हैं, लेकिन अगर आपके पास अपने ग्रेट्स ऑफ द गेम मौजूद हैं जिसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक्नॉलेज नहीं करते, इसलिए हमारे लिए बहुत सी पस्तियाँ, हमारा मुकद्दर जो है वो बन के बैठेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप रख लें, लेकिन जो डिज़र्व करते हैं, जो पाकिस्तानी हैं और जो डिलीवर कर सकते हैं और जो सोचते हैं। देखिए खुशी कब होती है, जब आज आपने इंडिया का डकआउट देखा, वो जैसे ही वो आउट हुए हैं और फिर वो जो जिस तरह उन्होंने मैं सबसे ज्यादा जो सबसे celebration पहले थी जो उनकी। विजुअल्स आए जब ये वर्ल्ड कप जीते हैं, सबसे पहला जो इंटरव्यू आया उस टाइम पे वो मोहम्मद सिराज का था, who didn't even get to be part of the playing 11, but he was sitting on that bench, he was rooting, और वो इतने खुश थे, he could not speak because of the emotions. He thanked the Almighty Allah and he said this is what we wanted as a team and we've worked for it. हर बंदे ने ये बात, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ इन दिस वर्ल्ड कप फ्रॉम टीम इंडिया, हु थॉरली डिजर्व्ड टू विन एंड टू लिफ्ट द टाइटल। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ऑन HMR Waterfront प्रेजेंट्स गेम ऑन है, बट व्हेन वी कम बैक वी हैव सम प्राइजेस टू गिव अवे। जी वेलकम बैक टू HMR Waterfront प्रेजेंट्स गेम ऑन है। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे इंडिया और उनकी वर्ल्ड कप ग्लोरी की। वी टुक अ लुक एट हाउ द मैच वेंट बाय बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, और की प्लेयर्स को हमने देखा और अपने गेस्ट्स के इनसाइट्स को हमने बहुत एंजॉय किया। बट नाउ आई थिंक बिफोर वी रैप अप द शो, it's important to take a look at the fans, because the fans are what make this game so complete visually. And once again today, whenever you talk about India playing, आप देख सकते हैं Indian fans are never away from the party. They were there in big numbers. अपनी blue jerseys में यूनुस, look at the smiles जी on पार्टी their तो अभी शुरू हुई है faces. जी, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। पार्टी शुरू हुई है, लेकिन अभी वहाँ पे सुबह का टाइम है, तो आई थिंक अभी कोई भी जागा नहीं है। बड़े मुश्किल से लोग जो मॉर्निंग गेम देखने आए हैं। असल पार्टी आई थिंक हमारे पड़ोसी It's मुल्क में Saturday. हो रही है, जो इस टाइम पे हो रही है। सो दे मस्ट बी इंजॉइंग दैट एंड दे डिजर्व दैट होली। अब बिफोर वी रैप अप, एक दो प्राइजेस हैं जो हमें गिव अवे करने हैं। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद MB Sports UMZ बैट विनर। किसने जीता है जी ये बैट? आज जो विनर है इस बैट के, उनका नाम है मिस्टर आरिस। बहुत मुबारक आपको, यू हैव वन अ बैट बाय
MB Sports UMZ bat hai ye, so I hope you will score a lot of runs with this bat. And of course, before we go, how can we leave you without giving away the J. Junaid Jamshed perfume? आज का जो perfume winner है वो हैं जी फैजान इश्तियाक। Congratulations, आपने इस सवाल का सही जवाब दिया था। आप क्रिकेट को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, that's why you have won the J. Junaid Jamshed perfume for today. And of course, lastly, it's the big one. It is the plot that is being given by our sponsors, Blue World City. और ये प्लॉट जीता है जी आफाक अयूब ने थ्रू अ लकी ड्रॉ, सो यू मस्ट बी वेरी लकी आफाक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका ये प्लॉट जो कि शुएब अख्तर एनक्लेव में था। और ये निकाला किसने था? वो जो इसका ड्रॉ था उसका बटन किसने प्रेस किया? आपने दबाया जी। था। सो All credit goes to Hafiz bhai. All credit goes to Hafiz bhai. Thank you, Hafiz bhai. Professor. अभी बटन दबाया था, वो कैसा था? वो बाद में बात करें। अच्छा था ये, बट खैर बिफोर वी रैप अप, हमारा जो ये एक तवील हमने ट्रांसमिशन किया वर्ल्ड कप की, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल without the support of so many people behind the scenes who have been working tirelessly with us to ensure कि हमारी ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए हम पेश कर सकें। सो a special thanks to all the departments of the Pakistan Television Network for making sure that we do our game on air in our usual style, starting with the administration, finance department, marketing and sales department, security department, design department, makeup department. Thank you so much. The IT department, the creative department, engineering, camera crew, the presentation and the production department for making sure कि हर चीज़ smoothly run करे और on time run करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। And of course, Mr. Osama Azhar, Director Sports Pakistan Television Network, who made sure that all of us were here and we were able to present this wonderful transmission for you in this World Cup. So thank you so much, Mr. Osama Azhar, for making Game On है a huge success. आपका support बहुत valuable रहा। उसके साथ साथ Mr. Syed Mubashir Tawqir Shah, who is the MD of the PTV network. आपको भी बहुत बड़ा thank you जाता है हमारी पूरी टीम की तरफ से for making sure that everything was in place and we were being supported in every which way. So thank you so much, Mr. MD, for all of your support throughout this World Cup. And of course, Ms. Shahira Shahid, the Federal Secretary of Information and Broadcasting. Ma'am, thank you for all your support and guidance and for being such a joy to be around always. Aapka support bhi bahut invaluable raha throughout this World Cup. So a big, big thank you from all of us. And last but certainly not the least, Mr. Ataullah Tarar, Minister of Information, Broadcasting and National Heritage, who made sure that we were all here in time and we were able to deliver such a spectacular transmission. और जो importance है एक World Cup की, जो एक उसका standard है, जो एक scale है जो हम expect करते हैं PTV Sports से, वो उस scale पे deliver हो ये transmission. So उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है. Thank you so much, Mr. Atta, for all of your support and for all of the kind words that you've always shared for all of us. And well, this was our transmission, gentlemen. Shoaib, thank you so much. You have been a joy to work with, and thank you so much for being back on PTV Network, bringing your value and your analysis and just your presence. You know, I hope you enjoyed the transmission. Naji, once again, बहुत बहुत शुक्रिया for having me back और अच्छा लगा. PTV is a family and we grown up with the family many years ago till now और अच्छा लगा. And obviously, thank you very much. You as an anchor, आपने बहुत अच्छा support दिया, आपने बहुत अच्छी anchoring की, supportive रही हैं आप, and you have a great knowledge of cricket. And of course, the greatest of all time, Yunus. Yunus is a brilliant guy. तो इसके साथ बहुत मज़ा आया मुझे और बहुत in depth analysis से कहते हैं यूनुस ने किए. And then of course हमारे हर दिल अजीज जी हम सबके हफीज़ इज़ लाइक हमारी टेलीविज़न, अगर अच्छा टेलीविज़न देखना हो तो आपको हफीज़ को देखना पड़ेगा. सो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट टेलीविज़न और इसकी इंटेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान बहुत अच्छी है और हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान अच्छा करे, हर लड़का अच्छा करे. सो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू. थैंक यू एंड बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ. एंड आई एम बैक इन ऑन द PTV आफ्टर 3 years जी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सेट बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ बहुत अच्छा था. Erin, she played a part, and Guptal,
he also contributed a lot. और बहुत अच्छा लगा यार. Thank you very much for having me. Thank you, Mr. Rawalpindi Express, for your invaluable presence throughout this World Cup. Yunus Khan, it has been a pleasure to work with you, to learn so much from you. हर दिन हम आपसे सीखते थे और ना सिर्फ ऑन एयर बट ऑफ एयर भी आपके साथ जितना हमने हंसी मजाक किया है, ऑल द टिकटॉक्स, ऑल द रील्स, एवरीथिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ स्पोर्ट एंड आपकी प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बिल्कुल बहुत अच्छा लगा जी पीटीवी पे. मैं भी काफ़ी अर्से बाद पीटीवी पे आया हूँ. मेरा भी पीटीवी का साथ जो है वो 2012-13 का है. तो मैं गाय बगाई आता रहा हूँ यहाँ पे. आप सबका बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा जब अपने कोलीग्स के साथ बैठ के हम जब अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और ख़ासतौर पे जो हमें यंगस्टर देख रहे होते हैं तो हमारी बिल्कुल इंटेंट यही होती है कि हम कुछ ऐसा उनको करके दिखाएं जिसमें उनको फ़ायदा हो. तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होना चाहिए और कोशिश भी यही करते हैं जो हमारे दिल में है वो हम डिलीवर कर सकें. और जब मैचेस जिस तरह हो रहे होते हैं, बॉलिंग पे बात कर रहे होते हैं, बैटिंग पे बात करते हैं, फील्डिंग पे बात करते हैं, और ये तो सिर्फ नज़र आ रहा होता है. उसके बाद हम कोशिश ये करते हैं कि लाइफ स्टाइल पर बात करें, क्योंकि देखिए ये जो क्रिकेट खेलनी है ये सिर्फ ये स्किल्स नहीं है, बिहाइंड भी बहुत कुछ है. तो मेरे ख्याल से इसी तरह लर्न करना चाहिए एक दूसरे से. और पीटीवी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, इस पैनल का शुक्रिया कि आपने हमारी इतनी अच्छी लुक आफ्टर की. नहीं, द प्लेजर हैज़ बिन आवर्स यूनुस खान. बहुत शुक्रिया फॉर योर एक्सपीरियंस एंड योर इंसाइटफुल नॉलेज. एंड लास्टली प्रोफेसर थैंक यू श्रोनिक, कैफ हाल? कुछ कहते हैं ज़रा अच्छे से. هذا كله ما في مشكلة ताज़ा. Very good analysis. इंतकलम खूबसूरत माशाल्लाह. Thank But you, on a Rohab. serious note, बहुत शुक्रिया आपका for your presence and for being so calculated throughout the show, so crisp and always giving your insightful knowledge and analysis which has been so spot on throughout the World Cup. So we really appreciate your time and I hope आपने भी enjoy किया हो ये ये World Cup. बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट का, शुएब भाई का. यूनस मार्टिन इज़ नॉट हियर, ही ऑलरेडी लेफ्ट. एरन एंड योरसेल्फ, हम सब ने मिलके एक इस प्रोग्राम की जो कामयाबी है उसमें अपना हिस्सा अपना जो है वो डाला. स्पॉन्सरशिप, तमाम मैनेजमेंट, ऑल दिस पीपल बिहाइंड द सीन, कैमरामैन, तमाम लोगों ने हमें जो बिहाइंड द सीन जो सपोर्ट मिल सकती है एक कामयाब प्रोडक्शन के लिए वो हमें प्रोवाइड की. बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई, बहुत कुछ सीखा. शुएब भाई की जो वाइल्ड प्रेडिक्शंस हैं उससे वेरी ऑनेस्टली लाइक सम टाइम हमें लगता है कि जो ये या कोई भी बोल रहा है उसके पीछे लॉजिक है. दिस इज़ हाउ यू लर्न कि यार एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, क्योंकि सम टाइम आपकी लर्निंग्स अपने इर्द गिर्द तो घूम रही होती है, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जिन्होंने गेम के साथ बहुत मोहब्बत से खेला हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा लर्न जो है वो करते हैं. तो मैं आपका ही बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शुएब भाई, आपके साथ प्रोग्राम किया, बहुत मज़ा आया. एंड आई एम श्योर कि वी विल come back again inshallah taala somewhere or we'll add a more value into PTV Sports. We will regroup. But until we do that, thank you so much. It has been an absolute pleasure being your host throughout this World Cup alongside Erin Holland. And ये थी हमारी छोटी सी कोशिश in this ICC Men's T20 World Cup 2024. We hope that you enjoyed our effort and our analysis throughout the World Cup, and it has been an absolute pleasure bringing you this show every single day for the last 4 weeks. So thank you for engaging with the show in all of your ways. और आप सबके support का और show देखने का बहुत शुक्रिया. This is Rohan Nadeem signing off. Thank you for watching HMR Waterfront presents Game On Here.